Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start our next lecture. This is the lecture number 9 in medical billing, and we are going to discuss revenue cycle management in this one. What is revenue cycle management? What kind of steps are included in this one? So we are going to discuss all the steps in revenue cycle management as we have already read about revenue cycle management step by step. But today we are going to discuss it all together. In the initial times, in the initial lectures, we have discussed all about the demographic portion, health insurance, payment portion, AR, appeal process, denial management, patient's data collection, claim submission, and everything. So this is basically the completely, we can say that this is all the revenue cycle management. Okay, so all these steps that we have already read in our 8 lectures, so they are included in this revenue cycle management. Okay, so we are going to elaborate it and revise our previous lectures in this lecture. Okay, so let's start it. Okay, so revenue cycle management is a critical process in healthcare administration that encompasses the entire financial journey of patients' interaction with the healthcare provider from the point of scheduling an appointment to the collection of payment for the services rendered. तो इसके अंदर मीन सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइक ये है कि जो इनिशियल पॉइंट था जब एक पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर के पास चेक करवाने गया, ठीक है, उससे लेकर एंड तक, जब ये है कि पेशेंट की सारी पेमेंट्स रिसीव हो जाती हैं, तब तक के जितने भी स्टेप्स इसके अंदर आ रहे होते हैं वो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, सो सेकंड क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेप्स aimed to optimizing the financial aspects of healthcare delivery while ensuring accurate billing, efficient reimbursements and compliance with regulatory guidelines. सो इसके अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम ये सारे स्टेप्स इसके अंदर वन बाय वन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सारे स्टेप्स इसके अंदर आ जाते हैं. पेशेंट की स्केजुलिंग से, अपॉइंटमेंट से लेकर एंड तक, ये उसके अंदर क्लेम सबमिशन हो रही है, चार्जेस बन रहे हैं, पेशेंट का डाटा इंटर हो रहा है, अपील्स हो रही हैं, एआर का काम हो रहा है, ठीक है, डिनाइल्स की मैनेजमेंट हो रही है, पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं, पेमेंट्स पोस्ट हो रही हैं. तो ये सारे जितने स्टेप्स थे वो इस रेवेन्यू साइकिल के अंदर आ जाते हैं. The ultimate goal of revenue cycle management is to maximize revenue, minimize costs and improve the overall financial health of healthcare organization. तो इसका यही होता है कि हाँ भी अगर रेवेन्यू साइकिल जो है वो अगर अच्छे तरीके से चल रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, सो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो मीन्स सक्सेस एंड प्रोग्रेस हो रही है, एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो प्रॉस्पर कर रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट. दिस इज जस्ट द डेफिनेशन. ओके, सो वी कैन जस्ट से दैट दिस इज द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट that encompasses all the steps from the initial scheduling of the patient to the patient's collections. Okay, so let's see. The revenue cycle typically consists of several key stages. इसके अंदर कुछ stages होती हैं, बहुत ही important होती हैं, so उनको हम further elaborate करते हैं कि वो क्या क्या होती हैं. So this is the picture of revenue cycle management. It's a courtesy by Google. So as you guys can see that इसके अंदर 16 steps हैं. इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ज़्यादा elaborate की जाती हैं, कुछ कम की जाती हैं. कुछ आप अगर Google के ऊपर सर्च करेंगे तो revenue cycle होंगे जिनके अंदर कोई 5 steps होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे. So ये है कि कुछ जो होते हैं ना, जो इंक्लूडिंग कुछ के अंदर आ जाते हैं, लाइक यह है कि अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, इन तीनों का एक ही बना देते हैं पेशेंट डेमोग्राफी. ठीक है, तो ये सारे उसी के अंदर ही आ जाती हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर खैर एनी हाउ यहाँ पर 16 स्टेप्स का रेवेन्यू साइकिल है. सो इसके अंदर ये देखें आप लोग, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. हमने ऑलरेडी पिछले अपने 8 लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि हाँ भी अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग होती है, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, उसके बेनिफिट्स की वेरिफिकेशन होती है, यूटिलाइजेशन रिव्यू, रेफरल एंड ऑथराइजेशंस ली जाती हैं, डिस्क्राइबिंग चेंजेस, कोडिंग एंड बिलिंग. सो ये सारे स्टेप, क्लेम सबमिशन एज इट इज, क्लियरिंग हाउस, डिनाइल्स, पेमेंट पोस्टिंग, डिनाइल मैनेजमेंट, अकाउंट्स रिसीव, अपील प्रोसीजर, पेशेंट कलेक्शन एंड पेशेंट बिलिंग एंड पेशेंट कलेक्शंस. सो ये सारे स्टेप्स इस रेवेन्यू साइकिल के अंदर आ जाते हैं कि हाँ भी इस तरीके से रेवेन्यू साइकिल वन बाय वन चल रहा होता है. और अगर ये सारे स्टेप्स स्मूथली रन कर रहे हो तो रेवेन्यू साइकिल जो होता है वो भी स्मूथली रन करता है और जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता रहता है. सो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, प्री रजिस्ट्रेशन एंड स्केजुलिंग. This stage involves capturing essential patient's information, verifying insurance coverage, and scheduling appointments or
And accurate data collection at this point is crucial for ensuring correct billing later in the process. So प्री रजिस्ट्रेशन scheduling के अंदर क्या होता है कि हाँ भी जब पेशेंट की डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी जो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही उसका जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इनका सारा डाटा वहाँ से उनसे ले लिया जाता है, लाइक कि उनका नेम क्या है, उनकी आईडी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, सारी जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग विच कैन बी क्रूशल टू बिल द क्लेम्स, तो वो उनसे ले ली जाती है, ठीक है, ताकि है कि बाद में उनकी बिलिंग की जा सके। तो सारा डाटा ये है कि उनसे ले लिया जाता है। उसके बाद है पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड चेक इन। ड्यूरिंग दिस स्टेज पेशेंट्स प्रोवाइड एडिशनल पर्सनल एंड इंश्योरेंस डिटेल्स एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू अवॉइड क्लेम डिनाइल्स ड्यू टू द एरर्स इन द पेशेंट्स इंफॉर्मेशन। तो यही होता है कि हाँ भी जब पेशेंट अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो ये है कि क्लेम के अंदर कोई डिनाई नहीं आएगा। ये है कि अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे जाता है या जो नोट कर रहे हैं उनसे कोई गलती हो जाती है, तो ये है कि बाद में जब बिलिंग करने लगते हैं तो उसके दौरान काफ़ी एरर्स आते हैं, जिसकी वजह से फिर यह है कि हमें अपील्स करनी पड़ते हैं या क्लेम दोबारा आ जाता है, उनकी रिप्लेसमेंट्स भेजनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ हाउ पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड चेक इन गोज़ ऑन। Next, see what we have over here. So this is the eligibility verification. Before providing services, healthcare providers confirm the patient's insurance coverage, co-pays, deductibles, and any pre-authorization requirements. This helps prevent billing issues later on. So इसके अंदर क्या होता है, एलिजिबिलिटी उसकी देखी जाती है कि हाँ भी ये मेंबर एक BCBS के साथ, मेडिकेयर के साथ, मेडिकेड के साथ कोई भी उसकी इंश्योरेंस प्लान है. So is he active with that or not? So if he is active with that, then we are going to check that how much coverage, co-pays, deductibles, and pre-authorizations requirements. Also we just verify those kind of things as well. Okay, so उसके डिडक्टिबल देखे जाते हैं कि उसने पे की है कि नहीं की है, ठीक है, को पे देता है कि नहीं देता। सो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के दौरान उससे ले लेते हैं। Okay, coding and documentation. Healthcare services provided during patients' visits are documented and coded using standardized medical codes. ओके, तो मीन्स ये है कि जब हम कोडिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हाँ भी CPT कोड्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सेंट्रल प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, HCPCS, HCPCS, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी प्रोसीजर्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पेशेंट्स, द रेंडरिंग प्रोवाइडर that provides the services to the patients, these are included in the CPT or HCPCS. okay, so ये कोडिंग सिस्टम होते हैं, हम कोड्स ऐड करते हैं while billing the claims to इंश्योरेंस एंड ICD कोड्स, ठीक है, ICD कोड्स भी उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कोडिंग इंश्योर्स दैट द सर्विसेज रेंडर्ड आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड ऑन द क्लेम्स, मीन्स जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उस प्रोवाइडर की तरफ से उनको हम CPD कोड्स या HCPCS के थ्रू उनको दिखाते हैं, ठीक है, कि हाँ भी ये हमने कोड्स यूज़ किए हैं, ये प्रोसीजर हमने किया था, तो ये हमने यहाँ पर बिलिंग के अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद ICD कोड्स होते हैं, ICD-10 कोड्स होते हैं, डायग्नोसिस कोड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं उसके बाद क्लेम बन जाता है, देन वी आर गोइंग टू सबमिट द क्लेम टू द इंश्योरेंस। दिस इज बेसिकली दैट व्हाट वी कॉल कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट वी सी दैट that's the charge capture. Charges for the services are captured based on the documented codes and then transfer to the billing system for further processing. Means वही charges में ये है कि CPT codes ऐड करना, diagnosis codes ऐड करना, इसके अलावा blah blah जो भी information हमारे पास होती है to make the claim. So we are going to add and capture that information into a billing software, and we are then going to transfer that claim to the insurance company. So next one is that claim submission. Claims are generated based on the captured charges and submitted to insurance companies or government payers for reimbursements. ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है कि हाँ भी जो भी हमने क्लेम बनाए हैं वो इंश्योरेंस को सेंड कर देते हैं, और गवर्नमेंट पेयर्स लाइक ही है कि मेडिकेयर जैसे होती है, वहाँ पर प्राइमरी मोस्टली लोगों की, ठीक है, मेडिकेयर बेसिकली 65 से जिनकी एज ऊपर होती है उनको दी जाती है, या डिसेबल्ड होते हैं तो उनको दी जाती है बेसिकली, ठीक है। सो ये है कि कोई मेडिकेयर मीन्स ये है कि कोई गवर्नमेंट पेयर है तो उसको दे दी जाती है, या अदरवाइज ये है कि कोई कमर्शियल प्लान्स हैं तो उनकी जो भी इंश्योरेंस होते हैं उनको क्लेम्स सेंड कर दिए जाते हैं। These claims contains detailed information about the services provided, the associated codes and the patient's insurance coverage. तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है कि हाँ भी ये पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, ये चार्जेस की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन दोनों का मीन्स क्लेम बना के वो इंश्योरेंस को सेंड कर दिया जाता है। जब क्लेम प्रोसेस होता है सो देन वो या तो सक्सेसफुल हो जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल हो गया तो पेमेंट आ जाती है, अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली देन
we are going to appeal on that one, or we are going to fix that those errors which are being caused due to the denial of that claim. Okay, जिसकी वजह से जो denials हुए हैं, जिस जिस एरर्स की वजह से, तो उन एरर्स को फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बाद अपील की जाती है या उस क्लेम की रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस को दोबारा भेज दी जाती है। So this is claim submission. Next, what we see, what we have, it's claims processing and adjudication. Charges insurance companies review the submitted claims, means जो भी हम क्लेम भेजते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिव्यू करती है, ठीक है। वेरीफाई द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिम्बर्समेंट्स बेस्ड ऑन द पेशेंट्स कवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एप्लीकेबल पॉलिसीज। क्लेम्स कैन बी एक्सेप्टेड, डिनाइड और एडजस्टेड। मीन्स तीन ही कंडीशंस होती हैं। लाइक ये क्लेम अगर आपका प्रॉपरली सेंड किया गया है, ठीक है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है और जो प्लान पेशेंट का है, ठीक है, वो भी एक्टिव है, तो ये है कि क्लेम आप लोगों का एक्सेप्ट हो जाता है और पेमेंट आपको मिल जाती है। अगर इसके अंदर कोई इशू है, कोई कोडिंग का इशू है, कोई इन्फॉर्मेशन का इशू है, कोई पेशेंट का डाटा कोई आप लोगों ने गलत भेजा है, या कोई प्रोसीजर्स जो कोडिंग की गई है वो ठीक से नहीं की गई, तो आपका क्लेम डिनाई हो जाता है। और इसके साथ एडजस्टिंग भी होती है कि हाँ भी अगर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो वो इंश्योरेंस कवरेज जो है वो प्लान के अंदर नहीं होती पेशेंट की, सो उन सर्विसेज को वो एडजस्ट कर देते हैं, उनकी पेमेंट नहीं करते। और अगर क्लेम प्रोसेस हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, देन वी आर गोइंग टू गेट द पेमेंट्स एंड देन वी आर गोइंग टू ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट्स द पेमेंट पोस्टिंग। वंस द इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेसेस the claim and provide reimbursements, payments are recorded and posted in the billing system। तो जब यह है कि जब पेमेंट हमें रिसीव हो जाती हैं in the form of EOB or ERA that we have already read in the previous lectures, so then we are going to add those insurances with the different kind of things like deductibles, what are the deductibles, what are the co-pays, co-insurances, and the paid amounts. So we are going to add this kind of information into our billing system. Payments can be from insurance companies, patients, or third party payers. So we can, there are different members from where we are getting the payments. So means we are just sending the claims to the insurances. So in that case we are getting the payments from the insurance companies. If we send the patient statement to the patients, like if there is a deductible, okay, then we are going to send the claim or send the patient statement to the patient, okay, then the patient is going to pay. Okay, there are some third-party payers as well, so we will discuss this in the next lectures. Okay, so this is about payment posting. Accounts receivable management, this stage involves tracking and managing outstanding payments from insurance companies and patients. AR management ensures timely follow-up on unpaid or partially paid claims. जो AR की टीम होती है, वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो क्या करती है वो ये है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग क्लेम्स होते हैं जिनके ऊपर बैलेंसेस पेंडिंग होते हैं, तो वो उन क्लेम को देखती है कि हाँ भी इस क्लेम का क्या इशू है, इसके अंदर कौन सा डिनाइल है, किस कौन सा एरर है जिसको हमने फिक्स करना है। फिर उस डिनाइल को लाइक फिक्स करके वो फिर अपील करते हैं। अपील करने के बाद उस क्लेम को प्रोसेस करवाते हैं। या कोई अनपेड क्लेम्स हैं, लाइक है कि उसके ऊपर अपील हो गई जो कि पार्शली पेड हैं, कुछ पे हैं, लाइक सेकेंडरी इंश्योरेंस के ऊपर पेंडिंग है, तो वो उनको फॉलोअप करते हैं। AR की जो टीम होती है वो सारी इन चीज़ों को देख रही होती है कि हाँ भी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द आउटस्टैंडिंग क्लेम्स। Then the next is denials management and appeals. If a claims are denied, healthcare providers initiate appeals to challenge the denial and provide additional documentation to support the claims validity. तो वही यही है कि हाँ भी जब कोई डिनाइल आ जाता है तो उस डिनाइल को फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर अपील्स की जाती हैं। जैसे ही अपील की जाएगी वो क्लेम होप्स हो के वो पॉसिबली एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी एरर्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। Okay, so next we have it's patient billing and collections. Patients receive bills for any remaining balances after insurance reimbursements. This stage includes explaining bills to patients, setting up payments plans if needed, and handling collections if bills remain unpaid. So कुछ ऐसा होता है कि लाइक ये कि इंश्योरेंस, प्राइमरी इंश्योरेंस थी, उसने अपना हिस्सा पे कर दिया, सेकेंडरी ने अपना पार्ट पे कर दिया। कुछ होता है कि हाँ भी अगर पेशेंट डिडक्टिबल्स मेट नहीं करता, लाइक ये कि उसने जब उसका प्लान स्टार्ट हुआ था उसको साल के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो डिडक्टिबल्स होते हैं वो उसने पे करनी चाहिए, अगर उसको पे नहीं करती तो इंश्योरेंस कंपनी भी सेम एज इट इज़ वो भी उस हिसाब से पे नहीं करती जो उसके प्लान में होता है, ठीक है। मीन्स 20/80 की जो रेशो होती है, फिर उस हिसाब से इंश्योरेंस प्लान भी पे नहीं करता, फिर वो डिडक्टिबल बना देता है कि हाँ भी कुछ पार्ट हम पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट है कुछ इसका पार्ट जो रह गया है तो ये आप लोगों ने उस पेशेंट से लेना है, उसके डिडक्टिबल्स बना देते हैं। सो इन दिस वे
पेशेंट्स को वो हम पेशेंट स्टेटमेंट्स भेजते हैं ताकि यह है कि जो उसका पेंडिंग बैलेंस है वो उसको पे करे। उसके बाद क्या होता है जी, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। डाटा कलेक्टेड थ्रू आउट द रेवेन्यू साइकिल इज यूज टू जनरेट रिपोर्ट्स एंड एनालाइज की परफॉर्मेंस indicators to assess the financial health of organization and identify areas of improvement। तो उसके बाद रिपोर्टिंग होती है कि हाँ भी थ्रू आउट द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कैसे चल रही है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं। अगर किसी जगह पर कोई इशू है तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा होता है, ताकि यह है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चलती रहे, उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होता रहे और प्रोग्रेस होती रहे। So this was all about the revenue cycle management. And once we have further over here, effective revenue cycle management requires coordination among various departments, including front-end staff, clinical staff, billing teams, and administrative personnel as well. By optimizing each stage of the revenue cycle, healthcare organizations can enhance financial outcomes, reduce claim denials, minimize billing errors, and maintain compliance with regulatory standards. तो यही बात है कि हाँ भी जब सारा स्टाफ मतलब जितनी भी टीम्स वहाँ पे काम कर रही होती है, प्रोडक्शन टीम, ठीक है, क्लिनिकल स्टाफ, ठीक है, बिलिंग टीम जो बैठी होती है वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी टीम्स बैठी होती हैं, अगर वो काम ठीक से कर रही होती हैं तो आपका रेवेन्यू साइकिल बहुत ही स्मूथली जनरेट हो रहा होता है, चल रहा होता है। जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल कैटेगरी होती है वो इन्हांस हो जाती है, उसमें डिनाइल्स कम हो जाते हैं, बिलिंग एरर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। इससे ये है कि आपकी प्रोग्रेस होती रहती है। So this was all about the revenue cycle management. We have already read about these steps previously one by one in each lecture, but this was the complete step. Like we can say that this was a complete lecture about how we are going to deal with revenue cycle management. Okay, so इसके अंदर सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड हो गई हैं, और जिस तरीके से हमने वन बाय वन लेक्चर के अंदर एक एक चीज़ अलग से पढ़ी थी, थोड़ी डिटेल से पढ़ी थी, यहाँ पर यह है कि समराइज किया गया है। यू गाइस कैन से दैट दिस इज द समरी ऑफ आवर प्रीवियस 8 lectures. So this encompasses as revenue cycle management, and so this was a necessary lecture. So I would let you know guys that this should be a very crucial lecture. You have to remind yourself that you guys have to memorize all the previous lectures to get different kind of a jobs in billing sector, because there we have used different kind of terminologies which are going to be asked while you are in an interview. Okay, so my best wishes are for you. And what we have over here, yes, if you guys have any kind of questions, then you guys can ask on YouTube comments as well, WhatsApp groups, Facebook and Instagram as well. So I am just going to share these kind of lectures and their trailers over these social media. So then if you guys have any queries and confusions and questions, then you guys can ask me. Okay, so hope you guys have focused on this lecture and the previous lectures as well. So keep it up, and if you guys have any queries, then you guys can ask me anytime. Thank you so much for watching us. Take care. Have a nice rest of the day. Goodbye. Allah Hafiz.